Good morning students. Today we are going to discuss about exponent and powers. So first question is here, what is the meaning of exponent and why do we use exponent in mathematics? So in mathematics we can see that there are many large numbers. Like if I want to write this, if I take this number, this is very large number. If I take another number like this one is also very large number. But if I want to write these two numbers in a short form, what should I do? If I want to compare that which one is greater and which one is smaller, what should I do? If I want to read this number, so what should I do? So this is very difficult for us now, which one is greater, which one is smaller, how do we read this number, how do we write it in this number in a short form? This is very difficult task for us. So to make them easy to read, write and compare, we use exponent. So what is the meaning of exponent? To write these number, to read, write and compare, we use exponent. And exponent in the sense, if I want to write this number in a short form, we use exponent. So let's see how do we write. So first of all, I have to count number of zeros in this number. So let's start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 zeros. Okay, so इसका मीनिंग क्या है कि 10 रेस्ट टू द पावर कुछ आएगा, है ना? तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगी? जितने नंबर ऑफ जीरोस है 10 लिख के मैं उतने ही उसमें पावर लगा दूंगी. कितने जीरोस है? देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros are there. It means that it stated that 10 raised to the power 11. So it read as 10 raised to the power 11. It means 10 is multiplied by 11 times by itself. 10 is multiplied by itself 11 times. It means 10 into 10, 10 into 10, 10 into 10 up to 11 times. आप 11 times जब multiply करोगे तो आपको ये मिलेगा. So it can be read as 10 raised to the power 11. Right? अगर यहाँ पे तो 11 zeros है, आप इसको बहुत सारे zeros लिखना है. So कैसे आप उसको read करोगे? बहुत difficult हो जाएगा ना? So to make them easy, we use exponent. Okay? To write, read and compare. अब देखो यहाँ पे देखो, इसको कैसे लिखोगे? इसको भी कैसे लिख सकते हो? 57 into 10 raised to the power. How many number of zeros there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So 57 into 10 raised to the power 9. इसका मीनिंग हो जाएगा 57 है जो मल्टीप्लाई हुआ है किससे? 10 से कितने टाइम्स? 9 टाइम्स by itself. Means 10 into 10 into 10 up to 9 times. ठीक है? यही मीनिंग होगा. तो इस तरह होता है एक्सपोनेंट्स एंड it read as 10 raised to the power 11, 10 raised to the power 9, 10 raised to the power 5. So this one is called base, which is multiplied. Okay, and this one is called exponent. Exponent or power. This one is called power. Number of times base is multiplied by itself. मीन्स आप बेस क्या होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई होगा ना, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा वो उसका एक्सपोनेंट होगा. एक्सपोनेंट हमेशा ये बताएगा कि आप उस नंबर को उसी से बाय इटसेल्फ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो. इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई 10 into 2 times, then 10 raised to the power 2. 10 is multiplied by 10 means itself. 10 जो है वो 10 से ही मल्टीप्लाई हुआ. कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. यही बता रहा है एक्सपोनेंट. 2 बता रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ. अगर ये 3 आ जाता तो क्या होता? ऐसा होता. अगर ये 4 हो जाता तो ऐसा होता. मीन्स 10 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. ये होता है एक्सपोनेंट. ठीक है? तो एक्सपोनेंट क्लियर हुआ. एक्सपोनेंट कैन बी रिटन एज बेस. This one is base and this one is exponent. Okay, and it can be written, it can be read as
if I take like this 2 square या 2 raised to the power 5, so it can be read as 2 raised to the power 2 2 raised to the power 5 है ना, 2 raised to the power 5 ऐसे आप इसको रीड करोगे। अगर यहाँ 3 आया सो 3 raised to the power 5, यहाँ 7 आया 7 raised to the power 5, 8 आया 8 raised to the power 5। ओके, सो इट इज वेरी इजी ना कि आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं, इजिली रीड कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम जीरोस होंगे आप उसको लिख सकते हो। लाइक अगर आपके पास ऐसा है क्वेश्चन, इसको कैसे आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? सो इसको कैसे लिख सकते हैं? 731 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज वेरी इजी। अब इसको इजिली आप रीड कर सकते हो, इजिली राइट कर सकते हो, और अगर कोई गिवन नंबर है उससे इजिली कंपेयर कर सकते हो। अगर ऐसा दिया so which one is greater? This one is greater because it has power 7 and it has power 6, that means this one is greater। okay, तो ये होता है एक्सपोनेंट का यूज। एंड इसका मीनिंग होता है, जैसे मैंने लिखा 2 raised to the power 2, इसका मीनिंग हो रहा है 2 into 2, 2 raised to the power 3, it means 2 is multiplied by itself 3 times, 2 into 2। if I write here 4 raised to the power 4, it means 4 is multiplied by 4 how many times? 5 times। okay, so ये होता है एक्सपोनेंट, और इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब आपको ऐसा लिखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये दोनों ऐसा लिखा है तो आपको ऐसे, और ऐसा लिखा है तो आपको ऐसे। तो कभी भी इसका मीनिंग, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला आपको, जैसे 6 raised to the power 6, इसको आप कैसे कर सकते हो? 6 into 6 into 6 into 6 6 times, 1 2 3 4 5 and 6 ये होगा। इसको आप फिर मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह ये होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, now there are some laws of exponent, but before going to their law we should know about some other things। like if I want to write 10 raised to the power 3 or 10 raised to the power 4, so we can write this 10 into 10 4 times, right? ऐसा है। if I divide this by 10 means it decreases by 1, the power is decreases by 1, है ना, यहाँ एक कम हो गया, so it can be written as 10 into 10 into 10। again if I want to decrease power 1 power, then 2 4 3 2, then it can be written as 10 into 10। again we divide this by 10, मतलब मैं इसको फिर से डिवाइड कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 power, that means it can be written as 10। then again if I want to divide this means इसमें क्या हुआ? इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, देन इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आया। ऐसे ये एक एक पावर यहाँ पे कम होते गए हैं। अगर अगेन मैं इसको ऐसा डिवाइड करूं, फिर से इसमें डिवाइड करूं, तब इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसमें आंसर? सो ये कैसा बन जाता है आपका 1/10। ओके, सो इनवर्स इट कैन बी रीड एज 10 इनवर्स, 10 इनवर्स इन द सेंस 1/10। ओके, तो ये इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है सेम वैसा ही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लाइक 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 and it can be written as in the form of exponent 2 inverse, 2 raised to the power -1। ठीक है, तो यहाँ पावर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सो ये होता है जब भी आपको ऐसा लिखा हो कि कोई भी नंबर में, लाइक अगर 3 इनवर्स लिखा है इट मीन्स 1/3, अगर 4 इनवर्स लिखा है इट मीन्स 1/4, 5 इनवर्स इन द सेंस 1/5। So this is called multiplicative inverse and having negative power। Okay,
तो ये होता है एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर है तो आपको हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखना है 1/10 से। सो ये एक रूल बन जाता है, A इनवर्स मीन्स 1/A। ओके, अगर आपको कोई भी इस फॉर्म में गिवन है दैट मीन्स आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स discuss about laws of exponent. There are some laws of exponent, like if A and B are two numbers, then A raised to the power m is multiplied by A raised to the power n. Then इस केस में क्या होगा, this one is called base, base same है and powers are different, then powers will be add. So A raised to the power m plus n, where m and n are इंटीजर्स। ठीक है, m एंड n क्या है, इंटीजर्स है, और ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। ये भी इंटीजर्स है, ए बी, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, हो सकता है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है। ए एंड बी आर नंबर्स, देन m एंड n आर इंटीजर्स, सो m प्लस n, ये फर्स्ट रूल हुआ, फर्स्ट लॉ। देन सेकेंड लॉ, it can be written as another way, like am dot an. It means यही होगा ना, am plus n, ठीक है, where m and n are integers, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है इसका लॉ। देन सेकेंड लॉ इज दिस, a raised to the power m is divided by a raised to the power n. देन इसमें क्या हो जाएंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, a raised to the power m, a raised to the power n, then a m minus n, where m is greater than n. ठीक है, and it can be written as a m upon a n. ओके, ऐसा भी लिखा होगा, it means a m minus n, इसका मीनिंग होता है ना डिवाइड होना। देन थर्ड लॉ क्या कहता है, जब ये ऐसा हो, a raised to the power m then n, इस केस में क्या हो जाएंगे, ये जो दोनों पावर्स हैं m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n। ओके, देन और जो लॉ है वो कैसे है, अगर ये पावर, दोनों पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, ठीक है, a raised to the power m एंड b raised to the power n, देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है ना, उस केस में क्या हो जाएंगे, ये जो बेस है, पावर सेम है ना, बेस डिफरेंट है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी पावर एम। ओके, देन और रूल क्या है इसके, और रूल देख लेते हैं। फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ऐसा हुआ ना, अगर ये आपको ऐसा फॉर्म में गिवन है, इसी का अनदर वे है कि ए एम अपॉन बी एम, ये कैसा मिलेगा आपको, इसमें भी ऐसे ही मिलेगा, a बाई बी देन पावर m। ये पावर m n कुछ भी हो सकता है, m is any integers. Okay, then one more thing is here, one more rule is here, a raised to the power 0, a raised to the power 0 की वैल्यू हमेशा आपको 1 मिलेगी। ठीक है, a raised to the power 0 की वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलेगी। देन एक और यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं, एक और रूल है, एक और लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग क्या, ये सिक्स्थ लॉ हो जाएगा, a raised to the power -1, ये कैसा हो जाएगा, देखिए सिक्स्थ लॉ है, a raised to the power -1 इन द सेंस 1/a। ओके, ये एक और लॉ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो जब भी बेस सेम हो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, जब यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड होंगी, जब डिवाइड किया जा रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। देन थर्ड लॉ इज, जब ये दोनों m और n है, ये पावर का पावर है, दैट मीन्स दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन a m ऐसा है, जब बेस डिफरेंट है पावर सेम है, दैट मीन्स बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, देन a raised to the power 0 in the sense 1, लाइक अगर 2 का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, 3 का पावर 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और a m अपॉन, ये इसका इसी का फॉर्म था ना, a m अपॉन b m, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
देन सिक्स लॉ है A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट जो रूल है 1 by 1 देखते हैं इसका। देखिए अगर मुझे कोई नंबर गिवन है लाइक क्वेश्चन इज हियर लाइक 2 raised to the power 3 is multiplied by 2 raised to the power 5, देन इसको क्या करोगे, देखो कौन से फॉर्म में है ये, a raised to the power m into a raised to the power n। तो ये जब फॉर्म है तो इसका आंसर क्या मिल जाए आपको, a raised to the power m plus n। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्व जब करोगे तो कैसा मिलेगा आपको, 2 raised to the power, इसको आप क्वेश्चन को अगेन लिख लेंगे इसमें, देन आंसर क्या मिल जाएगा, 2 raised to the power 3 plus 5, इट मीन्स 2 raised to the power 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप इसको और एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 raised to the power 8 इन द सेंस 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ऐसा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट रूल का। अगर यही जो क्वेश्चन है वो ऐसा हो, इसको चेंज कर देते हैं ऐसा, अगर ये है 8 इज डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 4, तो क्या मिलेगा आंसर, तो ये इसको सॉल्व करोगी तो क्या मिल जाएंगे फिर से। अब यहाँ क्या है रूल, ये क्या कहता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वेयर m इज ग्रेटर देन n। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 8 minus 4, so answer comes 2 raised to the power कितना होगा 4, देन इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। देन अगेन देख लेते हैं दूसरा। फिर अगर क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है 2 raised to the power 3 पावर 2, इस केस में क्या मिलेगा, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो आंसर कम्स 2 raised to the power 6, देन 6 टाइम मल्टीप्लाई, 2 कर 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे देन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ। देन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है लाइक 2 raised to the power 2 is multiplied by 3 raised to the power 2, देन इस केस में क्या करोगे, ये फॉर्म दिख रहा है आपको, a raised to the power m into b raised to the power m, इसका आंसर क्या मिलता है आपको, a b पावर m, मतलब दोनों बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 into 3 पावर 2, सो आंसर कम्स 3 2 is 6 पावर 2, सो आंसर इज 36, ये आंसर हुआ। इस तरह ये हुआ। ठीक है, और इसमें और क्या रूल था, ये हुआ। अब पावर डिफरेंट है, पावर सेम है, ये वाला केसेस हो गए। अब जैसे ऐसा लिखा हुआ है 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2, so it can be written as 2 by 3 power 2, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा भी लिखा है 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2, इसको ऐसे लिखे ना, a b ऐसा वाला 2 into 3 पावर 2, ऐसा हुआ ना, वैसे ही ऐसा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, अगर आपको गिवन है 2 raised to the power 0, दैट मीन्स आंसर 1, 4 raised to the power 0, आंसर 1, 8 raised to the power 0, आंसर 1, 18 raised to the power 0, दैट मीन्स आंसर 1, हमेशा आपको आंसर 1 मिलेगा। एक और केस है, जैसे a इनवर्स है, लाइक 5 इनवर्स, 5 इनवर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 by 5, 19 इनवर्स इन द सेंस 1 by 90, 20 इनवर्स इन द सेंस 1 by 20, ये आंसर। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, ये रूल्स को आपको फॉलो करना है और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, वन मोर थिंग इज हियर, इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म a by b minus m, so it can be written as, अगर आपको पावर को पॉजिटिव में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये a by b है वो क्या हो जाएगा, b by a हो जाएगा। ठीक है,
और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स ही है, लाइक ऐसा है ना ए इनवर्स, तो उसको 1/a लिखते हो, मतलब ये जो है वो नीचे आ गया, ऐसा था तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं ना यहाँ पे, और ये 1 हो गया। तो यही फॉर्म है इसका कि a/b है तो ये -m है, तो ये क्या हो जाएगा b/a। लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है 2/3 और -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आपको पॉजिटिव में करना है, तो ये हो जाएगा 3/2 + 2। ठीक है, ऐसा मिलेगा। एंड वन मोर थिंग इज हियर, लाइक अगर आपको पावर -1, अगर ये आपको ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, ऑड नंबर्स मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स हैं, उस केस में आपको -1 मिलेगा आंसर। अगर आपको ये -1 है, वो इवन नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये आपको +1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -1 पावर 3, यहां कर लेते हैं -1 पावर 3, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 इन द सेंस -1 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो -1। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 और देन -1, तो आपको आंसर क्या मिला, -1 मिला ना। यही कहना था कि अगर ऑड नंबर हो तो आपको माइनस मिलेगा, अगर आप 5 करोगे तो भी आपको माइनस मिलेगा, 7 करोगे तो भी आपको -1 मिलेगा। ऐसे ही जब इवन की बात करें तो इवन लाइक 2, 4, 6, जैसे -1 रेज़ टू द पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करो -1 इंटू -1, आंसर कम्स 1 +1। 4 कर लो, 4 के केस में भी आपको ऐसा ही मिलेगा -1 इंटू -1, तो इसका हुआ +1 और देन इसके इन दोनों को करोगे तो 1, देन आंसर कम्स +1, ऑलवेज कम्स +1 if the power is even. Okay, if minus power is odd, then answer comes -1, and if minus power base is -1, then power is even number, then answer come +1. Okay, ये है ये सब रूल्स है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके रूल्स में ऐड हो जाएंगे। वहां पे जो 6 था वो 7 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 8 और ये 8 में ही है, तो इसको आप 9 कर लेना, चलो कोई नहीं, या 8 में दोनों को लिख सकते हो, 9 कर लेना, ये रूल्स हो जाएंगे इसके। ओके।